बोलो कितना सेगमेंट रजिस्टर है, तो आगे बढ़ के कोई फायदा नहीं है। 4 सर। और 4 क्या सर। नाम है? कोड डाटा स्टैक एक्स्ट्रा। Code data stack extra. So you depend upon the S3 and S4. Depend upon the S3 and S4. We have shown the status of which segment register is used. Which segment register presently being used. Like this one. 00. All of you can see. Yes, sir. Yes, sir. 00 means alternative data. 01 means stack segment. 10 means code segment, and 11 means data segment. That is the nothing but a whole funda. Is it clear? I'm repeating once again. 00 alternative data means extra segment. Extra segment, stack segment, code segment, and data segment. Which segment presently been used? With the help of S3 and S4, we can know the status which segment is used. If 00, then alternative data means extra segment is using. If 01, then stack segment. If 10, then code segment, and if 11 means data segment. Is it clear to all? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. So I already described, the functions of each operations and all. So now I will be described. You can see my pin configurations. No sir. You can see now. Yes sir. Yes, sir. Very good. So with the help of that, we can easily say that functions of 80 to 87 I already 80 to 8015 I already described, and S3 to A19 is already described. Next, I am coming into the NMI and clock, NMI and INTR. NMI and INTR is it's also a very important instruction. NMI and NMI and INTR. What are the functions of NMI and what are the functions of INTR? So basically, the functions of NMI is non-maskable interrupt. There are actually in 8085 you can see the 5 hardware interrupt is there, but over here you will be get only 2. Number 1 is NMI interrupt, is called non-maskable interrupt. Also is called edge trigger interrupt. Also called edge trigger interrupt, or also called the type 2 interrupt. So what are the meaning of that? Edge trigger interrupt. What is the meaning of type 2 interrupt? I will be described one by one. Can you see my copy? Yes sir. Yes, sir. Very good. So interrupt is generated when, say there is a pin and the name is NMI. Okay, there is a pin. In this pin, when interrupt will be generated, say this kind of clock will be coming into this pin. So interrupt will be generated when? Interrupt can be generated in 2 different cases. Number 1 is called this one. It's called falling edge. It's called falling edge, or it's called low level. So interrupt can be generated in 2 different ways. One is called edge trigger interrupt, another is called level trigger interrupt. One is called edge trigger interrupt and another is called level trigger interrupt. Always falling edge and always low level, not higher level. It is always in low level. So interrupt can be generated in 2 different cases, either in falling edge or it will be low level. Depend upon the programmer or depend upon the microprocessor, it will be decided. Similarly, NMI is nothing but a edge trigger interrupt. NMI is a edge trigger interrupt. Whereas INTR, so this is the NMI interrupt. Whereas INTR is a low level interrupt. Low level interrupt means low level interrupt means when low signal will be coming, then interrupt will be generated. So INTR basically low level interrupt, which can be maskable or
non-maskable means sorry, which can be maskable. Maskable means it can be enabled, it can be disabled depend upon the us. But NMI you cannot mask or non-mask. It always non-maskable interrupt. But INTR is a maskable interrupt. It's clear to all of you? Yes, sir. It's clear Sir, to all of you? Yes, sir. repeat again, Yes, sir. sir. INTRs. INTR is a level trigger interrupt. There are actually in 8085 you can see 5 interrupt, but over here you can see only the 2 interrupt, NMI and INTR. With the help of INTR, you can connect other interrupt also. With the help of interrupt controller. With the help of interrupt controller, I will be coming the interrupt service routine when I will be describe the interrupt service routine. But remember, in physically we have only 2 interrupt without the connecting any external hardware. NMI is called level trigger interrupt because it's a falling edge interrupt will be generated. And INTR is a level trigger interrupt means when low level is detected. Low level किधर है? इधर detect हो सकता है, इधर detect हो सकता है, इधर detect हो सकता है, इधर detect हो सकता है. So in a low level interrupt will be generated either falling edge or low level, but that's why NMI is a edge trigger interrupt and INTR is a low level interrupt. Remember, it's a non-maskable interrupt, it's a maskable interrupt. Means you can enable or disable the INTR using the interrupt flag and all. It's clear to all of you? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Next, I will be describe. Sir, this before I'm going to this side, I'm just confirming you. In microprocessor 8086, I already told to you, it have a 2 mode. 2 mode means it have a minimum mode, it have a maximum mode. It have a minimum mode, it have a maximum mode. What is the minimum mode and what is the maximum mode? What is the minimum mode and what is the minimum mode and maximum mode? I already described in the previous day. हाँ बोलो बोलो 8-bit डाटा के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे तो मिनिमम no 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 8-bit no no डाटा के साथ no कॉन्फ़िगर करेंगे तो मिनिमम no sir, no. Minimum mode means only 18086 is working, and maximum mode means when Multi-process system. multi processor will be there. Multi processor means multiple bus master will be there. Example, sir. Sir, now Shonok sir is there in the class. You can see, na, Shonok sir is there or not in the class? No, sir. No, sir. No, sir. So it's a minimum mode. I am working alone. I am the master and I am the teach you alone. So this is the minimum mode. When Sonok sir and me together we are combined, we are taking a class. Means sometime he will be given some input, I will be given some input. Then this call is a maximum mode. Is it clear? Yes, sir. Sir, दोनों एक साथ possible है? दोनों एक साथ पॉसिबल है दोनों एक ही साथ पढ़ा रहा है वो भी कुछ पढ़ा रहा है हम भी कुछ पढ़ा रहे हैं शायद सोनक नाउ इज टीच यू माइक्रो कंट्रोलर एम आई राइट Yes, sir. Yes, sir. तो अभी वो माइक्रो कंट्रोलर पढ़ा रहा है हम 86 पढ़ा रहे हैं एक ही साथ एक ही क्लास में पॉसिबल होगा No, sir. तो क्या करेगा सोनक क्या करेगा सर जैसे अटेंडेंस लेने का टाइम क्या बोलता है सब परमिशन लेते हैं right because in that particular time I am the master in that particular time I am the master means whole control is by me whenever देखो स्लाइड शेयरिंग करने का टाइम में भी परमिशन लेता है मतलब means I am not given the permissions because I am that particular time all the things is controlled by me but whenever Sonok is wants to take classes or something like that I will be give this permissions means I leave it the class for Shonok means in that particular time I am sitting idle Shonok will be working am I right Yes, sir. this is called maximum mode this is called maximum mode means when more than one processor more than one 8086 processor working together when more than one 8086 processor working together when more than one 8086 processor working together then it's called
a maximum mode. Is clear? Yes, sir. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. So a minimum mode maximum mode में क्या होगा, ये 8 सिग्नल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सिग्नल का नाम डिफरेंट हो जाएगा। मैक्सिमम मोड में इसका नाम है ए, मिनिमम मोड में इसका नाम है ये। बाकी जो सारा 32 पिंस है, both the cases, minimum mode and maximum mode, both the cases name is basically same. It's clear to all of you? Yes, sir. Only only in a maximum mode, only in the maximum mode, it's in maximum mode it's I can say the name is different and minimum mode is different only for 8 pins. Rest of the 32 pin is common for all. It's clear all of you? Yes, sir. Any queries if you have, you can ask me. किसी का कोई क्वेरीज नहीं है तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ 8 पिन का नाम देख लेना, ये 8 पिन मिनिमम मोड में ये 8 पिन इस नाम में चलता है, मैक्सिमम मोड में ये 8 पिन इस नाम में चलता है। अभी फंक्शंस क्या है हम बाद में बता रहे हैं, मगर ये चलता है। अभी mn/mx बार, mn/mx बार, फुल फॉर्म ऑफ mn/mx बार, मिनिमम मोड ऑब्लिक मैक्सिमम मोड, मिनिमम मोड ऑब्लिक मैक्सिमम मोड। मतलब फंक्शंस क्या होगा सर, अभी बोलो। मिनिमम मोड ऑब्लिक मैक्सिमम मोड बोलो। देखो ना ये mn/mx बार का फंक्शन क्या होगा, mx मतलब मैक्सिमम मोड, इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर बार नहीं है, तो क्या होगा, i/m बार तो हम पढ़ा है 8085 में। यस सर। तो बोलो इसका फंक्शन क्या होगा सर when जब this लो signal हाँ लो होगा तो सर उसके ऊपर मैक्सिमम बार तो लो में काम करे। मतलब when this signal goes low, maximum mode will be activated or maximum mode will be working, and when this signal goes high, minimum mode will be working. Is it clear? यस सर। Is it clear? तो कभी कभी हम ये भी कोर्स कर सकते हैं जो हम सोनो को क्लास में एंट्री ना दे, हम सिर्फ हम पढ़ाएंगे, तो मिनिमम मोड ऑफ एग्जीक्यूशन एंड मैक्सिमम मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। मैक्सिमम मोड ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए mn/mx बार को लो होना पड़ेगा एंड मिनिमम मोड के लिए mn/mx बार को हाई होना पड़ेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट is RD bar. RD bar is nothing but a read bar. RD bar is nothing but a read bar. Read bar means it's a read operation. When the memory read or I read operations will be performed, then read bar signal will be low. When the memory read or I read operations will be performed, then read bar signal will be low. So next, BH bar oblique S7. What are the functions of BH bar oblique S7? S7 का भी कोई functions नहीं है, S7 का भी कोई functions नहीं है, ये रखे थे for the future purpose but not implemented. BH बार का एक फंक्शन है BH बार ऑब्लिक A0, मैं पिछला दिन पढ़ाया था बास हाई एनेबल एंड A0। किसी का याद है तो ठीक है, नहीं है तो मैं तुमको दिखा रहा हूँ वो टेबल। ये देखो BH बार ऑब्लिक A0 क्या फंक्शन है, 00 होल वर्ड मींस 2 बाइट, 01 अपर बाइट, 10 lower byte or even address or even bank, whatever you say, and 11 nothing, no bank will be selected. Is it clear to all of you? Yes, sir. S7 there is no functions. It's clear to all of you? यस किसी का कोई क्वेरीज है तो बोलो, किसी का कोई क्वेरीज है तो हम आगे बढ़े। So this is the function of BH bar, full form बास हाई एनेबल। बार है मतलब एक्टिव इज लो, तो हाई बैंक को सिलेक्शन करने के लिए इसको 0 होना जरूरी है, हाई बैंक को सिलेक्शन करने के लिए इसको 0 होना जरूरी है। Is it clear? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Next is ready and reset. Is the 2 pin is very important. Ready is nothing but a ready signal. I already described in 8085 same functions over here. Just I am repeat once again.
Ready signal means say what are the function of PC. PC is nothing but a program counter. The next instruction to be executed, the address is stored into the PC. That is the function of program counter. So if I am saying like that, you cannot able to understand. हम ऐसे आंसर बोलने से तुमको पता चलेगा, किसी समझ में आएगा? No, sir. No sir, because I am the faster device, you are the slower device. That's why. So कैसे बोलना चाहिए था? जब हम फास्टर डिवाइस तुम स्लोअर डिवाइस हो, तो तुम्हारे साथ हमारा स्पीड मैच करना चाहिए था. स्पीड मैच कैसे करेंगे? जो व्हाट इज द पीसी? यस सर, पीसी इज नथिंग बट ए प्रोग्राम काउंटर. यस सर. द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यस सर, टू बी एग्जीक्यूटेड, यस सर, stored into the PC, yes sir, that is the function of program counter, yes sir. So ऐसे करके हम बोलेंगे तो तुमको पता चलेगा yes sir कौन बोल रहा है. इधर yes sir कौन बोल रहा है? हैं? सुनाई नहीं दिया. ये जो हमें बोला जो what is the PC, yes sir, PC is nothing but a program counter, yes sir. yes sir कौन बोल रहा है? रिसीवर, तुम लोग बोल रहे हो. ये सर तो तुम लोग बोल रहे हो. तो हम तुमको एक डेटा दे रहे हैं, उसके बाद तुम यस सर मतलब तुम हमको ग्रीन सिग्नल दे रहे हो. सर ये समझ में हमको आया, यू कैन गो अहेड. सो हम मैंने दूसरा चीज बोल रहा है. इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. मतलब एक सिग्नल, एक चीज हम बोल रहे हैं, उसके तुम लोग यस सर बोल रहे हो, तो हम दूसरा सिग्नल दे रहे हैं. नहीं तो हम लोग वेट कर रहे हैं टिल कितना देर तक इसका सिग्नल हाई हो. इज इट क्लियर? यस सर, Yes, sir. तो ये सर तुम लोगों की तरफ से है सिग्नल, सो दैट आई कैन गिवन अनदर मैसेज. सो हम अनदर मैसेज देने के लिए जो है ये, इसीलिए हम लोग रेडी सिग्नल को यूज करते हैं. रेडी सिग्नल इज यूज्ड टू सेंस whether the slower peripheral is ready or not. तुम लोग ये सर ना बोलने से हम वेट करेंगे. माइक्रोप्रोसेसर वेट till is ready signal is high, मतलब जब तक रेडी सिग्नल हाई नहीं होगा माइक्रोप्रोसेसर नेक्स्ट डेटा नहीं देंगे. तुम जब तक यस सर नहीं बोलोगे तब तक हम वेट करेंगे तुम्हारा यस सर बोलने के लिए. इज इट क्लियर? यस Is सर, it? Yes, sir. Yes, Very sir. good. So yes sir मतलब ready signal, and ready signal is given by the slower peripheral from the to the higher peripheral, to the microprocessor, means high speed processors. Reset. What are the functions of reset? Reset just like a restart. When a reset, a high signal is coming into the reset, then microcontroller will be reset. At reset condition, what are the value of program counter in 8085? At reset condition, what are the value of program counter in 8085? बोलो, याद है? बोलो. रीसेट कंडीशन प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू हुआ था 0000H. ओके, इसलिए रोम हम लोग 0000H से शुरू करते थे. मगर इधर प्रोग्राम काउंटर के जगह में है CSNIP. मगर इधर रीसेट कंडीशन में प्रोग्राम काउंटर का CSNIP का वैल्यू हो जाएगा FFFF0H in 8086. Is it clear to all of you? At reset condition, program counter value will be FFFF0H. At reset condition, program counter तो इधर नहीं है, उसके बदले में CSNIP है. CSNIP का वैल्यू हो जाएगा FFFF0H. That's why for ROM, for 8085, ROM always starting from, by default ROM starting from 0000H. But for in 8086, ROM always ending at FFFFH, क्योंकि ये लोकेशंस ROM में होना चाहिए. नहीं तो OS जो ऑपरेटिंग सिस्टम तुम लोड करोगे वो शुरुआत में एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा. इसलिए. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yeah. Next, there is a signal is a test bar. It's a very important signal of test bar. Test bar is related with the wait instructions.
is a wait instruction. Test bar is related with the wait instructions. सर wait instruction के साथ function क्या है? wait मतलब क्या है? wait करना, किसी को इंतजार करना, right? यस सर। कभी माइक्रोप्रोसेसर को इंतजार कराना है तो वेट इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, और वेट इंस्ट्रक्शन मतलब ये टेस्ट बार हम लोगों को एक्चुअली एक्टिवेट हो जाता है। तो टेस्ट बार एक्टिवेट होने से हमको पता चल जाता है जो अभी वेट इंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब माइक्रोप्रोसेसर इज आइडियल स्टेट, माइक्रोप्रोसेसर इज इन आइडियल स्टेट। टेस्ट बार लो होगा तो माइक्रोप्रोसेसर इज इन आइडियल स्टेट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लॉक मीन्स इधर में क्लॉक आता है माइक्रो कंट्रोलर के पास। नेक्स्ट आई एम कमिंग इनटू द मिनिमम मोड सम सिग्नल, मिनिमम मोड सिग्नल, होल्ड सिग्नल and HLDA signal same as 8085. Hold signal is given by the DMA controller. If you recall, I given a story that there is a class representative. He will be he wants to take the class with the help of me. My bus will be controlled by him or her, so that's why hold signal is using by the DMA controller to the microprocessor. What are the purpose? When hold signal is used, means hold is a request signal, sending by the microprocessor to the DMA controller, microprocessor को DMA controller ने भेजता है hold signal to get the access of all the buses, all the buses. कौन भेजता है? DMA controller. किसको भेजता है? माइक्रोप्रोसेसर को, से 8085 हो और 8086 हो। तो इधर 8086 कौन सिग्नल, एक सिग्नल का नाम क्या है? होल्ड। ये रिक्वेस्ट भेजता है क्योंकि ये भेजने के लिए सारा जो डेटा जो बासेस है वो सब छोड़ने के लिए हो जाएगा। उसके बाद किसको दे देगा? सब डीएमए कंट्रोलर को दे देगा यूजिंग HLDA सिग्नल, HLDA मतलब होल्ड एक्नॉलेजमेंट। होल्ड एक्नॉलेजमेंट मतलब तुम्हारा जो सिग्नल तुमको माइक्रोप्रोसेसर ये डीएमए कंट्रोलर जो बास दिए थे, तो देने के बाद बोलना पड़ेगा मैंने तुमको सब छोड़ दिया है, बोलने के लिए HLDA सिग्नल। तो माइक्रोप्रोसेसर एक्नॉलेजमेंट करता है जो तुम्हारा बात सब छोड़ दिया गया, यू कैन वर्क। तो होल्ड सिग्नल से माइक्रोप्रोसेसर को रिक्वेस्ट भेजेगा, माइक्रोप्रोसेसर ग्रांट करेगा यूजिंग HLDA। होल्ड का एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होता है HLDA। 8085 में भी हम बोले थे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. राइट बार का क्या फंक्शंस होगा? any memory write or IO write operations will be performed. Memory write or IO write operations will be performed when memory write or IO write operations will be performed when write bar signal is low. Memory write or IO write operations will be performed when IO write bar signal will be low. देखो इसके बाद aim/IO bar 8085 में क्या था? 8085 में क्या था? ये सिग्नल था, बोलो। यस सर, एम बार था। हाँ, IO/M bar था, इधर aim/IO bar है। Just reverse functions. When this signal goes high, then memory operations will be performed. When this signal goes low, then IO operations will be performed. Okay? Is it clear? Yes. Is it clear? सर डेटा बस कैसा होता है सर? डेटा बस यूनिडायरेक्शनल और बाइडायरेक्शनल? Bidirectional. Data bus is a bidirectional bus. Okay, data bus is a bidirectional bus. Is it clear? Data bus is a bidirectional bus. Is it clear to all of you? Yes, sir. तो बाइडायरेक्शनल बस मतलब ये ट्रांसमिट भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है। फॉर माइक्रोप्रोसेसर इट कैन बी ट्रांसमिट और इट कैन बी रिसीव्ड। मतलब जा भी सकता है तो ट्रांसमिट, आ भी सकता है मतलब रिसीव। सिर्फ दिस इज अ माइक्रोप्रोसेसर, माइक्रोप्रोसेसर के साथ कनेक्ट रहता है तो ये जाएगा तो ट्रांसमिट, आएगा तो रिसीव। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो मतलब ये माइक्रोप्रोसेसर का पहले एक ब्लॉक के साथ कनेक्ट होता है जिसका नाम है ट्रांस रिसीवर। ट्रांसमीटर एंड रिसीवर बोथ, इसको बोलता है ट्रांस रिसीवर। इसको हम लोग बोलता है ट्रांस रिसीवर।
ये ट्रांस रिसीवर अभी ट्रांसमिटिंग मोड में जाएगा क्या रिसीविंग मोड में जाएगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय dt ऑब्लिक r bar. Data transmit oblique data received. If this signal goes low, then it will be received. If this signal goes high, then it will be transmit. When this signal goes low, then it will be received. When this signal goes high, then it will be transmit. So data transmit or it can be received. Next, there is a DEN, full form data enable. Full form data enable, DEN, DEN. What is the functions of DEN? What are the functions of DEN? Full form data enable. क्या functions है DEN का? बोलो DEN का क्या functions होगा? DEN का functions है reverse of ALE signal. Data enable, full form क्या बोला? Data enable, reverse of ALE signal. ALE signal का क्या काम है? एक बार कोई बोल सकते हो? बोलो ALE सिग्नल क्या फंक्शन है, अभी तो बोला AD0 to AD15 क्या काम करेगा विद रिस्पेक्ट टू ALE सिग्नल, बोलो। सर हाई रहेगा तो डेटा बस हाई हाँ, रहेगा हाई तो रहेगा एड्रेस तो बस के जैसा काम के हाई रहेगा तो एड्रेस एड्रेस बस, डेटा बस और नहीं। लो रहेगा तो डाटा बस। लो रहेगा तो डेटा बस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, यस सर। मगर हाई रहेगा, ALE सिग्नल हाई रहेगा तो ऑब्वियसली ये एड्रेस बस के हिसाब से काम करेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। सिमिलरली रिवर्स ऑफ डेन, रिवर्स इसका डेन रिवर्स मतलब जब तक डेन सिग्नल लो रहेगा तब तक डेटा बस के हिसाब से काम करेगा। 80 to 87 एक्ट एज ए डेटा बस। 8085 में नहीं था मगर 8086 में था, है डेटा डेन मतलब जब तक लो रहेगा तब तक डेटा बस के हिसाब से काम करेगा, जब तक लो रहेगा तब तक डेटा बस के हिसाब से काम करेगा, रेस्ट ऑफ द टाइम मे बी एक्ट एज ए एड्रेस बस। ALE सिग्नल के जस्ट रिवर्स। ALE सिग्नल मैंने बोल दिया, नहीं बोल रहे। INTA बार फुल फॉर्म इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। जो INTR इंटरप्ट जो था हमारा, इंटरप्ट आ रहा था पिन नंबर 18 से, उसी का एक्नॉलेजमेंट है पिन नंबर 24। INTR जब भी कोई नॉन मास्केबल इंटरप्ट मास्केबल इंटरप्ट कोई INTR के हिसाब से आएगा सो इसका एक्नॉलेजमेंट देगा INTA बार से। INTA bar is the acknowledgement signal of INTR. Is it clear? यस सर। Very good. Sir, Next. hello. हाँ, बोलो बोलो। सर जैसे हम लोग ALE में था कि लो होता था तो मे बी वर्क करेगा डाटा बस के जैसा या नहीं हाँ भी हाँ करेगा, हाँ। तो इसमें भी अगर हाई रहेगा तो ऐसा है क्या कि कर एकदम भी एकदम सकता है एकदम नहीं भी एकदम कर एकदम सकता है एकदम डाटा बस के जैसा? क्योंकि क्योंकि जब तक देखो एड्रेस बस एंड डेटा बस, मैंने पिछले दिन भी बोला था एड्रेस बस एंड डेटा बस चेंज होने का बीच में एक गैप तो रहता ही है। गियर चेंज करने के लिए जैसे Yes, गैप रहता है, इधर में भी एक गैप रहता ही है। तो क्या हुआ ना, जो डेटा बस जब तक लो रहेगा तब तक डेटा बस के हिसाब से काम करेगा, रेस्ट ऑफ द टाइम एड्रेस बस के हिसाब से भी काम करेगा और कुछ देर कुछ काम नहीं करेगा। बसेस आर आइडल, मतलब वो बसेस चेंजेस होने के लिए जो टाइम लगता है, तो उस टाइम में हम तो बोल नहीं रहे कौन सा हाई होगा कौन सा लो होगा। तो ALE सिग्नल को छोड़ के भी हम बोल सकते हैं जब तक लो रहेगा तब तक डेटा बस, जब तक लो नहीं रहेगा मे बी एक्ट एज ए डिफरेंट बस, एड्रेस बस आइदर बसेस आर ट्राइस्टेड। इज इट क्लियर? Is it Yes. clear or not? yes sir. Next, I am coming into the minimum mode signal. Some minimum mode signal. Sir, RQ/GT0 and RQ/GT1. These two is a very important pin. Request and grant. Request and grant. It's a very important pin. Request and grant. इसी पिन से ऐसे एक लो पल्स आएगा, इसी पिन से ऐसा ऐसा लो पल्स आएगा। ये है रिक्वेस्ट, ये है रिक्वेस्ट, तो ये है ग्रांट। सेम पिन से ये है रिक्वेस्ट तो ये है ग्रांट, ये है रिक्वेस्ट तो ये है ग्रांट, समथिंग लाइक दैट। मे बी इसका बीच में बहुत गैप हो, मे बी इसके बीच में बहुत गैप हो। दोनों ही ऊपर में बार है, रिक्वेस्ट ऑब्लिक ग्रांट, मतलब दोनों ही लो में काम करता है। क्या है सोनोक अगर क्या करेगा,
शौनक जब क्लास में आएगा तो क्या करेगा, मतलब अटेंडेंस के पहले, बोलो कोई रिक्वेस्ट हैं? बोलो, हाँ बोलो। अटेंडेंस करने के लिए पहले हमको क्या बोलेगा? सो परमिशन लेंगे, वेरी गुड, आपको रुकने के वेरी लिए गुड, बोलेंगे। परमिशन लेंगे, दैट इज द रिक्वेस्ट। शौनक हमको रिक्वेस्ट करेगा, यस ओके। यस सर। उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रांट करेंगे, हम ग्रांट करेंगे। हम बस उसको छोड़ दिया। अभी मान के चलो हमारा जरूरत, तो शौनक 2 घंटे से उसका अटेंडेंस ही हो नहीं रहा है, उसके बाद हम क्या बोलेंगे, शौनक हुआ है, शौनक हुआ है, देन आई विल बी सेंड द रिक्वेस्ट that you please leave the buses, because with respect to the state, as both are the teacher, Sonak also a teacher, I am also a teacher, so I cannot I cannot ignore him or ignore her, whatever it is. So basically request, I am given a request, please Sonak, please complete your attendance. So Sonak जब complete हो जाएगा तो फिर से grant करेगा, फिर हम काम करेंगे, फिर कभी भी शौनक भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट एंड ग्रांट बेसिकली एक ही पिन से, एक बाई डायरेक्शनल पिन है, दोनों काम होता है, एक रिक्वेस्ट भी होता है, दोनों, उसके बाद ग्रांट भी होता है, रिक्वेस्ट एंड ग्रांट। एक मतलब तुम सोचो, 2 माइक्रो प्रोसेसर और 3 माइक्रो प्रोसेसर एक साथ काम कर रहे हैं, तो कण बड़ा है, कण छोटा है, ये अब तुम बोल नहीं सकते हो, दोनों इक्वल है, am I right? यस दोनों ही तो माइक्रो प्रोसेसर है। अभी बास किसके कंट्रोल में होगा, जो काम कर रहा है उसी के कंट्रोल में होगा। अभी जो करना चाहता है उसको पहले रिक्वेस्ट करेगा, फिर इसको दे देगा। इज इट क्लियर? यस सर। रिक्वेस्ट ग्रांट, रिक्वेस्ट ग्रांट, रिक्वेस्ट ग्रांट, जब भी रिक्वेस्ट करेगा उसके बाद जब हमारा मान के चलो हमारा काम हो जाएगा तो हम फिर छोड़ देंगे, ग्रांट करके छोड़ देंगे, यही हमारा काम है। दो रिक्वेस्ट आ सकते हैं, 2 रिक्वेस्ट आ सकते हैं एक साथ माइक्रोप्रोसेसर के पास, दोनों रिक्वेस्ट लेने के लिए 2 जगह है, मगर याद रखना RQ/GT0 का हाईएस्ट फंक्शन है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है विद रिस्पेक्ट टू RQ/GT1। दोनों एक साथ रिक्वेस्ट आएगा तो RQ/GT0 को पहले छोड़ा जाएगा, उसके बाद RQ/GT1 को छोड़ा जाएगा। इज इट क्लियर? मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी। मान के चलो शौनक भी आया, शौनक भी आया, और मान के चलो और मान के चलो प्रिंसिपल सर भी आया, तो प्रिंसिपल सर इज कनेक्टेड विद RQ/GT0 एंड शौनक इज कनेक्टेड विद RQ/GT1। दोनों एक साथ बोलेगा छोड़ देने के लिए, तो हम बोलेंगे प्रिंसिपल सर आप कर लीजिए, उसके बाद शौनक करेगा, समथिंग लाइक दैट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. नेक्स्ट, सर ये डिस्टर्ब अच्छा नहीं लग रहा है, ये हम क्लास करा रहे हैं या शौनक आकर क्लास ले रहे हैं, मगर हमको बोल रहा है सर छोड़ दीजिए। ये अच्छा लग रहा है, पढ़ाने के बीच में गैप हो जा रहा है ना, हो रहा है कि नहीं? यस सर, यस सर, Yes, तो sir. मैंने क्या किया, लॉग बार सिग्नल को दे दिया। लॉग बार सिग्नल को जब तक हम लो कर देंगे, वो शौनक, प्रिंसिपल सर, कोई भी हमको रिक्वेस्ट ही नहीं कर सकता है सर छोड़ने के लिए, बोल ही नहीं पाएगा। इज इट क्लियर? यस सर, जब भी हम उसको लॉग बार सिग्नल को हम दे देंगे, मतलब नो वन कैन रिक्वेस्ट मी टू रिलीज ऑल द बसेस, आई विल बी द होल मास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर, हम एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे। लॉक इंस्ट्रक्शंस हम लोग एक्चुअली एक ये भी है, प्रीफिक्स इंस्ट्रक्शंस भी है लॉक। जब कोई इंस्ट्रक्शंस के पहले हम लोग लॉक लगा देंगे तो वो इंस्ट्रक्शन चलने का टाइम कोई भी रिक्वेस्ट नहीं लेगा, वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, फिर दोबारा दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले देखेगा कोई रिक्वेस्ट आया है कि नहीं आया है, नहीं आया तो कंटिन्यू करेगा। मगर लॉक हम लोग फिफिस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम भी कराता है, राइट? QS0, QS1 is these two is a very important. I am describe these 3. QS0 and QS1 is a queue status. Queue status मतलब जो हमारा 6 बाइट लॉन्ग क्यू है उसको, उसका स्टेटस मतलब उस क्यू में कितना डेटा है, फर्स्ट बाइट ऑफ कोड फ्रॉम क्यू मतलब एक ही बाइट ऑफ क्यू से लिया गया है कि नहीं, सब्सिक्वेंट मतलब पूरा भरा हुआ है और बहुत सारा डेटा है कि नहीं है क्यू में, और एम्प्टी क्यू है कि नहीं है, ये सारा देखने के लिए QS0 एंड QS1 को हम लोग डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द स्टेटस। बिकॉज देखो क्यू मतलब दूसरा मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए तो क्यू में रहता है,
अभी जब हम सोनक को छोड़ देंगे, मगर मान के चलो हम पढ़ा रहे हैं, सोनक को अभी हम क्लास में नहीं छोड़ेंगे, हम पूरा कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही छोड़ेंगे, क्योंकि ये सारा S0 S1 S2 ये सारा हमारा अभी क्यू में स्टोर्ड है। इसको हम पढ़ाएंगे तो हमारा क्यू खाली होगा, उसके बाद ही हम छोड़ पाएंगे। और सोनक भी स्टेटस चेक करेगा कि सर का क्यू खाली है कि नहीं, सर का पूरा हो गया कि नहीं। तो सर का क्यू खाली है कि नहीं है वो डिपेंड करेगा QS0 एंड QS1। मैंने बोला था जब आर्किटेक्चर भी पढ़ाया था, जब पाइपलाइनिंग आर्किटेक्चर भी पढ़ा था, एक 6 बाइट लॉन्ग क्यू रहता है, 6 बाइट लॉन्ग क्यू। अभी वो क्यू फ्री है, खाली है कि नहीं, खाली है मतलब उसके और कोई काम नहीं है, वो अभी दूसरा काम में यूज करा सकते हो। इसीलिए उसको हम लोग देखते हैं जो क्यू स्टेटस क्या है, खाली है क्या, वो भरा हुआ है। देखो QS0 QS1 जो 0 0 रहेगा तो नो ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन से नहीं कर रहा है, तो सोनक देख के आराम से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। 0 1 फर्स्ट बाइट ऑपकोड फ्रॉम द क्यू, पहला सिर्फ इंस्ट्रक्शंस के लिए हम लोग पहला ऑपकोड फेच के लिए हम लोग लिए हैं फ्रॉम क्यू, बाकी सारा पड़ा हुआ है। 1 0 एम्प्टी क्यू, मतलब क्यू में कुछ भी नहीं है। सब्सिक्वेंट बाइट ऑफ क्यू मींस क्यू में डेटा है, सिर्फ एक दो नहीं, सिर्फ क्यू में बेस डेटा है, ये बोल सकते हो। तो सोना को देख के हमको रिक्वेस्ट और ग्रांट करेगा। इज इट क्लियर? And S0 S1 S2 it's a very also important, just see S0 S1 S2 is used for मिनिमम मोड जो 8 सिग्नल है उसी के लिए। देखो 000 इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट जो INTA, रीड आईओ पोर्ट, राइट आईओ पोर्ट, रीड मेमोरी, राइट मेमोरी मींस एम ऑब्लिक आईओ बार का फंक्शंस, कोड एक्सेस, पैसिव एंड हॉल्ट। देखो ये सारा जो राइट साइड वाला जो सिग्नल है, राइट साइड वाला जो सिग्नल है, ये सिग्नल के लिए ये S0 S1 S3 है, तीनों कॉम्बिनेशंस के इसका कवर अप हो जा रहा है। इन तीनों सिग्नल से हमारा ये हो जा रहा है। हॉल्ट मतलब होल्ड के हिसाब से काम करेगा। एंड यू नो S0 S1 S2 इज नथिंग बट 000 के हिसाब से एक होगा, 001 के हिसाब से एक होगा, डिपेंड करेगा इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट एंड ऑल, सारा का सारा डिपेंड करेगा S0 S1 S2 के ऊपर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट है, इसको तुम लोग बुक से मिल जाएगा, हम इस सोनक को भी बोल देंगे दे देने के लिए, सो दैट यू कैन यू नो गेट इट, सो इट विल बी बेटर फॉर यू।